what actually fast cable sales. हमारा विजन है वी एम्पावर द कम्युनिटीज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आजकल की प्रोडक्ट्स what are those actually? केबल्स के साथ डाइवर्सिफाई भी किया है, हम एलईडी लाइट्स में भी आ गए। So how do you deal with all of those challenges which actually you face? ये सारी जो चैलेंजेस हैं ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड करती है। Future goal क्या है आज का? ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि हम 100 बिलियन रेवेन्यू की कंपनी जो है वो बने। Today I'm going to interview Mr. Kamal Mahmood Amjad Mia, who is the Chief Executive Officer at Fast Cables Limited. आइए चलकर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। First of all, welcome to the show. Thank you for being here. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले जो है हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Let's start off with your journey, that how your journey has been so far since start till now. Just a brief, and then हम लोग फिर get जाएंगे। So I have actually many journeys. So this is the one of the 3 journeys in my professional career. So by training, I am a corporate lawyer. So I practiced law for about 3 years, and then I moved to investment banking, and I practiced that in that industry for about 15 years outside Pakistan, primarily in the Middle East. And then my journey with Fast started in 2012-13, and that has been 10 years plus journey with the Fast. So I think we can talk about the latest journey. So I can say it has been amazing to serve in Pakistan, to work with our team in Pakistan, and to achieve what we have achieved in the country. So I have no regrets for these journeys, especially the last one. Right. So fast cables की अगर हम थोड़ी सी बात करें, पहले थोड़ा सा आप उसको मज़ीद elaborate कर देंगे what actually fast cables है। फास्ट जो है ना, वो ब्रांड जो है वो डिफाइन होता है फ्रॉम इट्स विजन। हमारा विजन है वी एम्पावर द कम्युनिटीज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें कुछ कोर वैल्यूज हैं जो हमें डिफाइन करती हैं। ये सही बात। उसमें नंबर 1 है इंटेग्रिटी, दैट व्हाटएवर we do with a very clear vision of that it has to be done right. Absolutely. Number 2, it's very important that we want to innovate, we want to really get the best to our customers. Very important part of the journey also is the team and the people, the stakeholders. Our focus is on our customer, to deliver customer our brand promise, which is that whatever we do, we achieve excellence in that. Which is so true. So तारों से सितारों तक जो हमारी टैग लाइन है, मैं एक्चुअली that सर reflects that. उसी पे आने वाली थी कि क्योंकि अब विजन की बात हो रही है फास्ट केबल्स की, तो तारों से सितारों तक is the tagline in the motto. So how come this comes up? You know, this is also very attractive in that way. हाँ, असल में अगर तो लोग लिटरल मान ही लें उसका, तो लोग कहते हैं अच्छा ये क्या बात हुई, तो तारों से सितारों पर तो नहीं जाता। लेकिन उसका एक्चुअल जो एक फिलॉसफी है वो ये है कि जब आप जैसे कोई बहुत अच्छा काम करेंगी तो आपको कहेंगे कि इन्होंने तो सितारों को छू लिया, ठीक है। तो इसी तरह जब व्हेन वी अचीव एक्सेलेंस, दैट्स इज लाइक सितारों को छूना। मींस कि हमने इस बिजनेस में जो भी हम कर रहे हैं हमने एक्सीलेंस अचीव कर। राइट। सो फास्ट का आइडिया किस तरह से आया? हाउ यू थॉट ऑफ दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ? जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने आज से 40 साल पहले स्टार्ट की थी। ही सॉ देयर इज अ नीड फॉर क्वालिटी products because he was a user of cables, and that's where he started manufacturing, and over the period then he kept on improving and investing into the core business, innovating, and became the largest cable manufacturer in the country. राइट जी। सर थोड़ा सा बात करते हैं जो आजकल की प्रोडक्ट्स या जो भी चल रही है इसके हवाले से, इनोवेशन जो भी फास्ट में स्पेसिफिकली चल रही है, सो व्हाट आर दोस आजकल, उसके हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहें। हमारी रिसेंट जो है हमने केबल्स के साथ डाइवर्सिफाई भी किया है, हम एलईडी लाइट्स में भी आ गए। राइट। अबाउट 3.5 years ago, और हमने कहा कि हमने पाकिस्तान में जो लाइट्स के चैलेंजेस है कि आपको पता नहीं है कि आप लाइट यूज कर रहे हैं, वो आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं है, वो आपको हेडेक हो सकती है उससे, लेकिन आपने लाइट ले ली अब, और ना उसकी कोई लैब है, ना उसकी कोई टेस्टिंग होती है,
तो वो सारी चीज़ें हमने मसले हल की और कस्टमर को द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद द फास्ट ब्रांड एंड द वारंटी वो हम मार्केट में लेके आए। हम एक बेंचमार्क बनाते हैं मार्केट में, उसके बाद फिर बाकी उसको फॉलो करते हैं, तो ओवरऑल हमारा मार्केट पूरी का स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाता है। तो लेटेस्ट जो बिल्कुल लास्ट क्वार्टर की हमारी एक अचीवमेंट अगेन फर्स्ट इन पाकिस्तान कि हमने एक प्लांट सर्टिफिकेशन ली है जो कि फर्स्ट इन पाकिस्तान है। वो क्या है? वो ये इंश्योर करती है कि इस प्लांट में हर प्रोसेस, हर चीज़, मटेरियल की प्रोक्योरमेंट से लेकर फिनिश गुड की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस के आफ्टर सेल डिलीवरी के प्रोसेस तक everything as per the best practices used in the world. So that's how we benchmark ourselves. That's how we basically position ourselves. That's right. So, थोड़े से challenges के हवाले से बात करते हैं. Keeping in mind the economical situation of Pakistan. So, how do you deal with all of those challenges which actually you face? वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना, अपना तंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा, ये कुछ चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करती हैं। Absolutely. तो हमारा तो व्यू ये होता है कि जहाँ चैलेंज है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, आप अपॉर्चुनिटी को देखें और उसको लेके आगे बढ़े। तो वैसे भी सेइंग है कि व्हेन द थिंग्स गेट टफ द टफेस्ट गेट गोइंग। तो हमारी टीम का भी यही फोकस होता है कि वी हैव टू डिलीवर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्केट है। That's right. So, according to what are the current policies जो भी गवर्नमेंट के अभी हैं, what do you think कि जो भी आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, सारी चीज़ें is like going to according to that too? हमें थोड़ा सा ये चैलेंज आता है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे एरियाज़ में गवर्नमेंट ओवर रेगुलेट कर देती है। ये वही बात है कि आपको कोई नया ट्रैफिक रूल बनता है, उसकी वजह होती है कि कोई 100 में से 10 लोग या 8 लोग जो है ना वो खिलाफ वर्जी करते हैं एक चीज़ की, तो उनको रेगुलेट करने के लिए बाकी 90 जो है ना वो भी उस रूल की कंप्लाइंस करनी पड़ती है। तो सेम गोज़ वे इन द बिज़नेस ऑल्सो कि आप रिस्ट्रिक्शंस, आप पाबंदियाँ, आप चीज़ें लेके आते हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो कंप्लाइंट और जो कि सही काम करने वाले बिज़नेस होते हैं उनकी बढ़ जाती है, जबकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो 5, 7, 2, 3% जो लोग नहीं सही काम कर रहे उनको रेगुलेट करने के लिए। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म यूज़ करे, ना कि लॉज एंड रेगुलेशन बढ़ाते जाए। तो अदरवाइज़ आई बिलीव कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत कुछ करने को है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी ऑल शुड वर्क हार्ड टू डिलीवर ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन कीप ऑन कंप्लेनिंग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अपनी कैपेसिटी में रह के हम अपने हिस्से का जो है वो काम करते हैं। राइट, सही। फास्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सर, फ्यूचर गोल क्या है फास्ट? हमारा 2030 का ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि हम 100 बिलियन रेवेन्यू की कंपनी जो है वो बने। अब हम कोई 35-38 बिलियन की इस वक्त रेवेन्यू की कंपनी है। तो उसको हमने अचीव करने के लिए हमने इस साल IPO किया, उससे हमने 3 बिलियन फंड्स रेज़ किए। उसकी इस वक्त हम उसको यूज़ करके एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा बड़ा फोकस है कि हम ना सिर्फ लोकल मार्केट को एक्सपेंड करें बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी डेवलप करें, वहाँ पे भी एक रीज़नेबल शेयर ऑफ सेल लें। उससे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलेगा, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करने में एक हम रोल प्ले करें। सर, जो सस्टेनेबिलिटी की जैसे बात की जा रही थी पहले कि ये भी एक मिशन और गोल और विजन, यही और कोशिश भी की जाती है। हाउ डू यू ट्राई टू मेंटेन इट? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस वक्त, ख़ास तौर पे रिसेंट जो स्मॉग से हम गुजरे हैं, तो हमें एक चीज़ रियलाइजेशन पूरी कौम को हुई है कि जो एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली हमारी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं ठीक करेंगे तो हम तो ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो बात की हैं। तो हमारी क्योंकि विजन में ये चीज़ शामिल है कि वी वांट टू एम्पावर कम्युनिटीज़ थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके में हमारा जो रोल है वो हम उसको इस तरह प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी तो लोगों को इनकम मिलेगी और लोग खाना पीना अरेंज कर सकेंगे, और जो हमारे यहाँ स्टंटिंग और जो है ना हंगर और ये मसले हल होंगे। अब डेवलपमेंट तो करना ज़रूरी है, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होंगे। अब आज हम करना शुरू करेंगे तो उसको 5, 7, 10 साल लगेंगे। तो यही हमारा हमारा जो मिशन है वो ये है कि एक तो हम अपने बिजनेस में जितनी प्रैक्टिसेस हैं उनको सस्टेनेबल बनाएं। फॉर एग्जांपल
हमारा ये ऑफिस जो है ये WWF से ग्रीन ऑफिस के जो उनका प्लान है उसके मुताबिक हम इसको ग्रीन बिल्डिंग बनाया हुआ है हमने। प्लस हमारी जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे हमने सारी फैक्ट्री में सोलर लगा के हम तकरीबन 1.5 मेगावाट तक की कैपेसिटी लगाई है कि Right. हम जो है ना अल्टरनेट एनर्जी यूज़ करें, हमारा जो Rather फ्यूल than- का यूज़ है वो कम course. हो। प्लस हम एक और इनिशिएटिव हमने ये लिया कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वुडन रील्स यूज़ करते हैं तो उसको रिप्लेस करें, जो स्टील रील्स यूज़ करें जो कि मेटल है वो अपना आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। Okay. उसके very अलावा key. हम क्योंकि हम जो ट्रीज़ हैं वो एक बहुत ज़्यादा अपना हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है। तो हमने पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके PHA के साथ मिलके हमने ट्री प्लांटेशन की ड्राइव्स की हैं इस साल भी, पिछले साल भी। इसके अलावा और चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर फिल्ट्रेशन में कम्युनिटीज़ में जाके वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन का इंतज़ाम किया ताकि साफ़ पानी लोगों को मिले। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो रेन वाटर आता है उसको हम वेस्ट करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने इंतज़ाम किया अपने प्लांट्स पे और कम्युनिटीज़ में कि वहाँ जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करके उसको ज़मीन में ले जाया जाए ताकि ज़मीन का जो वाटर टेबल है Oh, वो बेहतर हो। right. And that has been utilized. गैस later on. वो फिर यूज़ होता है। वाटर को खुद हम रिसाइकिल भी करते हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में वाटर होता है। तो दीज आर सेवरल इनिशिएटिव्स। इसके अलावा एक जो लेटेस्ट चीज़ हमने की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। वो ये है कि हमने देखा है कि हम इस इशू को, सस्टेनेबिलिटी के इशू को कैसे एक पब्लिक एजेंडा बनाएं। तो उसके लिए हमने जो पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड लॉन्च किया है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स को कहें कि वो इस पे रिसर्च करें और जो बेस्ट प्रोजेक्ट है या बेस्ट जो रिसर्च है उसको हम अवार्ड करें, उसको रिकग्नाइज करें। Okay. उससे ये होगा कि एक नॉलेज बेस बनेगा, एक डाटा बैंक बनेगा, उसको लोग यूज़ Utilize करेंगे। करके and then you और count. सबसे बड़ी बात यह है कि वो आगे इस पे डिस्कशन होगी। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए फर्दर डिस्कशन को हमने एक फास्ट फॉरवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोरम बनाया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करनी है और हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड भी करना है क्योंकि मुल्क की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट जो है ना हम फास्ट करें, बट एट द सेम टाइम उसको सस्टेनेबल भी करना है। इसके ऊपर हमने फोरम एक सेटअप किया है और फोरम डिफरेंट शहरों में डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ उसके ऊपर डायलॉग करेंगे, उसके ऊपर एक्सपर्ट को बुला के डिस्कशन करेंगे। वी ऑल हैव टू, आई थिंक इसमें मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई एनकरेज डिस्कवर पाकिस्तान ऑल्सो कि उसमें भी वो बिल्कुल एक रोल प्ले करें क्योंकि इससे प्रॉब्लम which affects everyone और we all have to work together Yeah, of course. to deal with it also. Definitely, and that's how the world is changing now. Global warming is also big. तो हम अभी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे तो we gonna go in long run. And actually I'm very glad to know कि फास्ट जो है इतनी डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है। We're having such a great conversation. तुम्हारे साहब के साथ हमारी बहुत बेहतरीन सी कॉन्वर्सेशन जारी है। सर हम आपसे पहले थोड़ा सा फास्ट के वाले से बात कर रहे थे, सो उसी को कंटिन्यू करता है। अच्छा, दिस ऑल्सो हैपन कि समटाइम्स क्या होता है कि इलीगल तरीके से कोई और कंपनी या इवन लोकल कोई भी केक मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है और आपका टैग जो है उसको लगा के सेल आउट कर रहा होता है। सो दिस ऑल्सो हैपन, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ एक्चुअली यू टैकल दैट। कॉन्ट्रफीट हम इसको कहते हैं, जो केबल बनती है, इसका हम फास्ट ने इसमें भी काफ़ी इनोवेशन की है एक तरह से। 2015 तक हमारा कोई मार्केट में हमारी केबल नहीं बिकती थी, हम सप्लाई नहीं करते थे और हमारा ये कस्टमर को कहना होता था कि अगर आपको फास्ट मिलेगी तो वो हमसे मिलेगी डायरेक्टली। फिर 2015 में क्योंकि जो मोबाइल टेलीफोन है इस बहुत आम हो चुके थे तो हमने एक सर्विस लॉन्च की थ्रू द मैसेज सर्विस फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, उसको हम कहते फास्ट तस्दीक, कि उसकी वेरिफिकेशन कर सकता था कि वो जेन्युइन है कि नहीं। अच्छा, तो उसमें हमारा होम ग्रोन सोल्यूशन था, फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, कि हमने अपनी केबल के डब्बे के अंदर कॉइल में एक स्टिकर लगाया जिस पे एक हिडन कोड था। उस कोड को आप स्क्रैच करके मैसेज करें तो आपको हमारे ERP सिस्टम से कंफर्मेशन आती थी कि ये केबल जेन्युइन है। उसके बाद फिर हमने पूरे मुल्क में डीलरशिप नेटवर्क भी डेवलप किया और लेटली फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारा हर वक्त हम उसको अपडेट करते रहते हैं, तो हमने फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक फास्ट ऐप बनाई और उस ऐप पे हमने फास्ट तस्दीक की सर्विस लॉन्च की थ्रू QR कोड। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उससे कस्टमर को जो है जेन्युइन प्रोडक्ट मिले और एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है।
कस्टमर के साथ इन क्वालिटी इसी तरह से मेंटेन की जा रही है। राइट राइट सर, वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड राइट नाउ, 2024 चल रहा है, एआई का दौर है, सो हाउ एआई इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस वर्ल्ड? हमारा इस पे बहुत ज़्यादा फोकस शुरू से रहा है। हमने बहुत ज़्यादा अर्ली जो है ना हमने अडॉप्ट किया ERP सिस्टम्स और हर चीज़ को हमने ऑनलाइन किया टू द एक्सटेंट कि हमारी ऑनलाइन शॉप आप फास्ट केबल्स भी और लाइट्स भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप घर बैठे उसको खरीद सकते हैं हमारी जो फास्ट शॉप है उसके ऊपर। तो अब एआई का हम यूज़ इस तरह कर रहे हैं, बस हमारी जो कस्टमर सर्विस है विद चैट बॉट के थ्रू वो एआई मैनेज्ड है और कस्टमर को हर तरह का इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है ऑन द क्वेश्चन दे कैन आस्क। उसके अलावा हमारे जो स्टाफ हैं डिफरेंट लेवल पे वो सारे एआई यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर ओन वर्क। और सबसे बड़ी बात यह कि कॉस्ट जो है ना सेविंग करें। ऐसा थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक तो हाउ इज इट गोइंग, सेकंड फास्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को किस तरह से मीट कर रहा होता है? जैसे मैंने पहले जिक्र किया था हमारा वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर जो बेसिक सर्टिफाइड। अब बेसिक सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में तो कोई रिक्वायर भी नहीं करता उसको। तो उसका करने का मकसद ये था एक तो पाकिस्तान में हम अपने आप को अपग्रेड करें और सबको पता हो कि इंडस्ट्री इज़ फास्ट इज़ फॉलोइंग ए मिनिमम जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कंप्लाई करें। प्लस बाहर ये होता है कि आप कहीं नए कंट्री में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से डोर ओपन होता है और people trust you because they don't know the company, they haven't visited the plant, they haven't dealt with the product before. तो उनका ये फिर फ़ायदा उनको जो हो जाता है कि उस पर ट्रस्ट करते हुए, क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तो वो आपको साथ भी बिजनेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट में ये है कि हम कोई 8 से 10 कंट्रीज़ में पहले ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रांड पाकिस्तान को एट पार लाना है इंटरनेशनली। उसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो कि हमने किया है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करें और फिर जाके डिफरेंट थ्रू द एग्जीबिशंस, 1-to-1 मीटिंग्स अपने ब्रांड को प्रेजेंट करें। Right, so there is an initiative that I was just reading about, and that is Neki Ki Tokri. And I'm just getting so curious to ask you, so what exactly that is? होता ये है कि नेकी की टोकरी का जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में या एक तंदूर पे वो लोग जो आपको वो रोटियां जो हैं या वो नान जो है वो बेच रहे हैं, तो उनको आप कहते हैं कि आप एक टोकरी रख लें और उसमें नान रख लें। जो किसी के पास पैसे नहीं है वो वहाँ से ले लें और उनको बगैर किसी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना जो है ना वो खाना जो है वो बेसिक सस्टेनेंस जो है वो ले लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मैनी इनिशिएटिव जो हमारी एक सोशल कम्युनिटी वेलफेयर का जो एक आर्म है फातिमा लतीफ़ फाउंडेशन, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। उसमें हम लेडीज़ की फॉर एग्जांपल स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लेडीज़ को हम हुनर सिखाते हैं। लर्न फास्ट के नाम से हमने इंस्टीट्यूट बनाया है, वहाँ पे इस वक्त भी क्लासेस चल रही हैं। तो ऑब्जेक्टिव इन सारे इनिशिएटिव्स का ये है कि हम लोगों को एम्पावर करें। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनालिटी ट्रेट के हवाले से बात करते हैं। एज अ लीडर आई वुड आस्क यू कि कौन सी क्वालिटीज एक लीडर में होना बेहद? कोई भी बंदा जो उसकी सक्सेस है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल होता है वो बहुत और लोगों का होता है। ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना नंबर 1 लीडर का ये काम है। फिर उसके लिए ग्रेटफुल होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम को किस तरह से एज अ लीडर लेके चलना चाहिए? व्हाट आर दोस स्टेप्स? वो बंदा लीडर नहीं होता जो अच्छी चीज़ हो जाए जो वो उसका ले ले क्रेडिट और बुरी चीज़ हो जाए दूसरों को इल्ज़ाम दे दे। लीडर होता है कि अच्छी चीज़ हो जाए दूसरों को क्रेडिट दे और अगर चीज़ अच्छी नहीं हुई तो उसका जो है ना खुद जिम्मेदारी ले। तो दैट्स हाउ द लीडर्स जो है ना आई थिंक दीज आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। अच्छा, तो सर ये तो लीडर की क्वालिटी होती है ना कि टीम को मोटिवेट करो। एज अ लीडर वेयर वन गेट एक्चुअली द मोटिवेशन फ्रॉम? खुद कहाँ से मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन के बहुत ज़्यादा पहले के जगहों से मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन। आपके चैनल की तरह के जो चैनल हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ को शेयर करते हैं, वहाँ से आप यू गेट मोटिवेटेड कि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, हमें भी करना चाहिए। फिर आपका एक विजन होता है, आपका एक मिशन होता है जो आपको ड्राइव कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन वहाँ से भी आ रही है कि यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, यू वांट टू अचीव दैट। दैट्स राइट, दैट्स राइट। और सर ऐसे भी तो होता होगा ना, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी आती होगी वेयर
there are a lot of challenges और बहुत stressful like situation भी होती है. So how do you or you okay with taking as a leader? I mean, trying to learn from you at the same time. So how do you cope up that? अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि आप 2012 में पाकिस्तान वापस आए थे, अगर आपको ही डिसीजन करना हो तो आप क्या करें? मैंने कहा मेरा वही डिसीजन होगा जो तब था. बहुत सारे लोग जो ना उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए बाहर मिलती हैं, बाहर चले जाते हैं, जैसे मैं भी एक वक्त में गया था. और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे रह के दे कैन मेक ए डिफरेंस, तो वो यहाँ करते हैं. आपको देखना ही होता है कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर इम्पैक्ट, हाउ कैन यू हैव द really use your time in the best possible manner and really add value. तो मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि am I adding a value? Am I really doing something which is making a difference? As long as I'm doing that, I'm excited about that, I'm motivated about it. Right, sir. और balance किस तरह से सब maintain कर होते हैं? Because I believe it's going to be really hard. आप personal life है और professional life है at the same time. Is it difficult? And if it is, so how do you balance? Frankly, there is a view which is कि balance शायद होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अब चैलेंज क्या होना शुरू हो गया, अब हमारा वर्क जो है ना वही हमारी लाइफ बन गई. तो एक व्यू ये भी है कि इफ़ यू लाइक योर वर्क, दैट्स व्हाट एक्चुअली गेट्स यू गोइंग. You feel good by doing it, you get energy, you get motivated, so why not? So अब ये भी एक, मैं ये नहीं कहता कि this is what is the right thing to do. आपको ज़ाहिर रेस्ट भी करनी है, आपको अपने बॉडी का भी ख्याल करना है, आपको अपनी फैमिली का भी ख्याल करना है. What I try to do is कि I try to kind of make sure कि I do take time out when it comes to exercise, when it comes to just relaxing. उससे थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है. अच्छा सर, जब फारग टाइम होता है when you have the free time, तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करें? So मेरी हमेशा एक लॉन्ग रीडिंग लिस्ट होती है, तो मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें कुछ पढ़ने की कोशिश करूँ. और बल्कि मेरे पे क्रिटिसिज्म ये भी है घर में कि मैं बुक्स खरीद लेता हूँ लेकिन फिर उनको पढ़ता नहीं हूँ. तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, बाद में खरीदने जाएंगे तो मिलेंगी नहीं, बेहतर है कि आप जो अच्छी बुक है उसको ले लें. बिल्कुल सही. और उसके अलावा आप आई डू प्ले ट्वाइस ए वीक गोल्फ, जस्ट उससे वॉक भी अच्छी हो जाती है और एक अच्छे एनवायरनमेंट में कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रिलैक्स होता है. बिल्कुल सही. और सर बुक जो कि आप तज़किरा कर रहे हैं, तो एनी बुक डू यू वांट टू रिकमेंड अस? बुक्स तो खैर बहुत ज़्यादा हैं. अभी रिसेंटली एक मैंने बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स. राइट. हाँ, तो बड़ी अच्छी किताब है, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए, बल्कि इट्स मोर लाइक ए वर्क बुक, उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए. तो दैट इज़ वन वेरी गुड बुक. अच्छा, आप तो बहुत से लोगों के रोल मॉडल हैं एक्चुअली. आपका एक्चुअल में रोल मॉडल? एक तो मैं खैर नहीं हूँ रोल मॉडल, मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा कंफ्यूज किस्म का मेरा कैरियर है. तो मेरा रोल मॉडल देखें बहुत सारे लोग हैं. मसलन हम जो काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, तो जैसे डॉक्टर अमजद साकिब हैं, ही इज़ ए ग्रेट रोल मॉडल. जो हम बिज़नेस का काम करते हैं तो हमारे यहाँ सैयद बाबर अली हैं, ही इज़ ए ग्रेट रोल मॉडल. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इंस्पायर यू इन डिफरेंट वेज. मैं समझता हूँ कि हमें रोल मॉडल्स जो है ना, हमें हर एक एरिया में लोगों को रोल मॉडल जो है ना वो चाहिए. Everyone has a role model. अच्छा, do you like traveling? I do actually. I have traveled all over the world. So कोई आपकी favorite जगह which you like? This is one. Favorite तो खैर बहुत सारी जगह हैं. जिम्बाब्वे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था पहले. एक जगह है विक्टोरिया फॉल्स. Okay. And Victoria Falls is one of the world's 7-8 wonders. It is the longest fall and the largest waterfall. And that's a beautiful place. And it's so far away कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना thousands of tourists भी नहीं आते हैं, तो काफ़ी उसका एक अपना एक relaxed environment है. और बहुत बड़ी उसकी वाइल्ड लाइफ का एक पूरा रिजर्व है, तो उसमें you can talk to and play with the elephants also and so forth. So it's a nice place. That's Victoria Falls. Victoria Falls. Right. और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कैसी जगह जो पाकिस्तान में तो I love actually the northern areas. I've been to many places. In fact, some friends we have done the base camp of Rakaposhi. So that was great travel and hike की थी हमने. उसके अलावा जो खजराब पोस्ट है, उस beautiful area है. फिर the Sai Plains है, we have traveled that also. We have done kind of trekking in that area as well.
They're all beautiful. Sir, any advice do you want to give to the people who are listening right now? In general in life. मेरी जो एक लर्निंग है वो ये है कि हम we should not give advice. We should share experiences. क्योंकि एडवाइस जो है ना वो हर किसी का अपना एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर किसी का अपना एक माहौल होता है. मेरी एडवाइस मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद फिट ही ना हो. That's so right. तो And that's so beautiful. एक्सपीरियंस शेयरिंग इज मच मोर. तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग सबके लिए है कि 90% टाइम आपको जो चीज़ चाहिए होती है फॉर सक्सेस वो हार्ड वर्क होता है. 10% होता है, उसको आप लक भी कह सकते हैं, उसको आप पहले इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं. कि लक इज एक्चुअली द मैच ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अपॉर्चुनिटी. Oh, preparedness and opportunity. तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे तो बैड लक कह लेंगे. और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो भी बैड लक है. तो एक्चुअली इट्स एक्चुअली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. It lovely having a conversation with you, sir. और बहुत कुछ सीखा है मैंने. तो बहुत कुछ सीखा है. I've made a lot of notes in my mind too. और in generally we had a lovely conversation once again. बहुत शुक्रिया आपका सर. Thank you so much for being here. और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी at some other place. Till then, take it to yourself. Keep watching Discover Pakistan and keep watching Make This Laughing.